Good morning, students. Hope you understand the Unit 1 clearly, where we have studied about the individual behavior. Okay, how individuals behave and what make their behavior, like personality, perception, how they learn the things, and how they are motivated. Now, in this Unit 2, we are going to cover interpersonal and a group behavior. Means interpersonal behavior means is how people interact with one another, and how to make them very effective, how to make interpersonal behavior very effective, which is very important in the organizational setting where we need to work with a group. Interpersonal behavior is a behavior and action that present in human relationship, the way in which people communicate, and all that this entails is considered interpersonal behavior. Means when people interact or there is a social transactions in which one people respond to another, that is come under interpersonal behavior. You can say the didactic या फिर the relationship between the two involve an interaction with which both may behave in a particular way, which may be either cooperative, which may be either conflicting. Interpersonal behavior is the study of one's own perception, knowledge, attitude, motivation, and how these affect one's behavior to the self and with the other. मीन्स आप किस तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे का बिहेव कर रहे हैं, कैसे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं इंटरपर्सनल बिहेवियर में. बिकॉज जब आप किसी को रिस्पॉन्ड करते हैं तभी आपका जो है या तो कोऑपरेटिव बिहेवियर दिखेगा या कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर दिखता है. ठीक है, दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि हमें ग्रुप में किस तरीके से या आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करना चाहिए. इट हैज़ थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. कम्युनिकेशन स्किल, where we talk about the knowledge, your intelligence, your literacy level, your listening skills, your verbal skills, और योर एक्टिव लिसनिंग और फीडबैक, किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं. इमोशनल इंटेलिजेंसी, बिकॉज इमोशंस ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल when you are communicating with others, like self-awareness, emotional maturity, your social skills, your good eye contact, body language, you have an empathy attitude towards the other, you have a very understanding attitude, because all this make your complete behavior. आप किसी से बात कर रहे हैं बट आप उसकी ओर देख नहीं रहे. ठीक है, तो बात तो हो रही है ना, कम्युनिकेशन तो हो रहा है, बट देयर इज नो आई कांटेक्ट. सोशल स्किल आपकी कहाँ गई? तो लोग क्या कहेंगे, ये तो घमंडी है, ये हमसे बात नहीं करना पसंद करता, इसलिए मेरी ओर देख नहीं रहा है. ठीक है, दे हैव एटीट्यूड प्रॉब्लम. तो ऑल दीज थिंग्स मेक अस अंडरस्टैंडिंग कि हमें किस तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करना है कि सामने वाला जो है आपका एम्प्लॉय, आपका सबॉर्डिनेट, जो भी पेयर ग्रुप है, वो आपके कम्युनिकेशन से इम्प्रेस हो सके. ओके, द there is a cooperative and conflicting both type of interpersonal behavior. Cooperative interpersonal behavior, when the interaction between the two people is mutually gratifying, it is cooperative behavior. Means both person are engaging in a complementary transactions. ठीक है, both person get satisfied over the objective of mutual interaction. अगर आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं एंड यू आर सेटिस्फाइड, ठीक है, म्यूचुअल इंटरेक्शन आपका हो रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर नहीं है, तो इट मीन्स इट्स अ कोऑपरेटिव इंटरपर्सनल बिहेवियर. एंड इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग such behavior are a functional and lead to achievement of the organization objective. Okay, this type of behavior is expecting in an organization and also provides satisfaction to the individual at the same time. Next is conflicting interpersonal behavior. Because of several reasons like your personality differences, your value system differences, your interest conflict, your lack of interpersonal skills, you can say improper approach
of mutual interaction, conflicting interpersonal behavior may emerge. Okay, this type of behavior is dysfunctional in both organization and in individual level. Basically, functional कब है? When it create a mutual interaction, mutual understanding, but it become a dysfunctional, it doesn't do anything when it create a conflict. An attempt should be made to replace conflicting interpersonal behavior by your cooperative interpersonal behavior. This can be done by developing interpersonal skills and applying them judicially. तो बेसिकली वी आर डूइंग हेयर कि किस तरीके से आपका कॉन्फ्लिक्टिंग अगर इंटरपर्सनल बिहेवियर है, आप देखते हैं ना किसी से आप बात करते हैं तो आप कहते हैं ये तो हमेशा लड़ता रहता है, कोई बात करके फ़ायदा नहीं है, ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. तो इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरपर्सनल बिहेवियर. एंड बाय लर्निंग इंटरपर्सनल बिहेवियर स्किल्स यू आर एबल टू convert your conflicting interpersonal skill into a cooperative interpersonal skill. Clear? Skill for cooperative interpersonal behavior. What type of skills is required? Cooperative interpersonal behavior is effective for all the organization, whether it is employee, manager, other peer group, everywhere. Cooperative interpersonal behavior play a very important role. And we should motivate the employees to develop and use skills necessary for your cooperative interpersonal behavior. Even in your class you see, अगर आप एक दूसरे से कोऑपरेटिव इंटरपर्सनल बिहेवियर होगा, आप एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनेगा. एंड इफ हेल्दी इन्वायरमेंट होगा तो आपकी लर्निंग क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, आपको काम करने में इंटरेस्ट आने लगता है. बट अगर आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो बात करना पसंद नहीं करता है, या बात बात पे झगड़ता है, या फिर वो आपकी बात समझना नहीं चाहता है, तो आप देखते हैं कि देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरपर्सनल बिहेवियर. तो ऐसे बच्चे के साथ कोई बात करना पसंद करता है नहीं, उसके साथ आप टीम में काम करना चाहोगे नहीं. तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू डेवलप दिस स्किल कि कैसे आप अपने बिहेवियर को कोऑपरेटिव बनाएं. ठीक है, फॉर दैट first is your positive thinking. Positive thinking play a very important role. Positive thinking person look positive aspects in any person, object or event. आपके सामने कुछ भी होगा, अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है तो आप उसका हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट ही देखते हैं. ठीक है, कि अगर माना इसे काम नहीं किया तो आपके दिमाग में क्या आएगा, इसे काम नहीं किया, ये तो मुझसे बदला लेना चाहता है, ऐसा नहीं आएगा. पॉजिटिव थिंकिंग क्या कहेगी कि इसे काम नहीं किया तो माइट भी हो सकता है इसे कोई प्रॉब्लम हो, आई शुड फाइंड आउट दैट प्रॉब्लम. ठीक है, द पॉजिटिव एस्पेक्ट ब्रिंग अ सेटिस्फैक्शन, ग्रेटिफिकेशन, एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ब्रिंग योर फ्रस्ट्रेशन. आप हर चीज़ को फिर नेगेटिवली ही देखते हैं, एंड इट लीड यू टू फ्रस्ट्रेशन. ओके, विद द पॉजिटिव एस्पेक्ट clashes of mutual interest, difference over a tiny matters, etc. can be sort out very easily. ओके, तो जिसकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी वो सामने अगर कुछ बुरा हो रहा है ना तो उसको भी वो पॉजिटिव वे में ही लेगा. ठीक है, तो पॉजिटिव थिंकिंग इंटरपर्सनल बिहेवियर को अच्छा बनाती है. देन अ म्यूचुअल ट्रस्ट. ओके, देयर शुड बी म्यूचुअल ट्रस्ट. टू इंडिविजुअल्स शुड हैव अ म्यूचुअल ट्रस्ट. आपको जो है एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए. आप आना ऑर्गेनाइजेशन में आपके हेड को, ठीक है, आपका जो मैनेजर है या आपका बॉस जो है, अगर उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है या आपको अपने उस बॉस पे ट्रस्ट नहीं है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इंटरपर्सनल बिहेवियर पॉजिटिव होगा? नो. तो देयर शुड बी अ म्यूचुअल ट्रस्ट देयर. ठीक है, ट्रस्ट इज द टू वे ट्रैफिक. एक ही जगह ट्रस्ट होता रहेगा, एक ही साइड से आप सबॉर्डिनेटेड ट्रस्ट करता रहे या आपका बॉस ही आप पे ट्रस्ट करता रहे, आप ना करें, तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो सकता. तो इट शुड बी अ टू वे ट्रैफिक. ठीक है, दैट इज इफ वन वांट दैट अदर्स शुड ट्रस्ट हिम, ही मस्ट ऑल्सो ट्रस्ट अदर्स. इट इज़ वेरी नेसेसरी. ठीक है, एंड ट्रस्ट हैव अ टू अप्रोचेस. ट्रस्ट एवरी वन अनलेस एविडेंस गोज अदरवाइज. जब तक आप सबके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है,
जब तक कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिलता है कि वो आपको मजबूर कर दे कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, तो इट ब्रिंग अ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इन इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लेके आता है इंटरपर्सनल बिहेवियर में। और अगर दूसरा क्या है अप्रोच, डू नॉट ट्रस्ट एनी वन अनलेस एविडेंस गोज अदरवाइज। आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे जब तक कुछ इवेंट ऐसा ना हो जाए जिससे आपको लगे कि नहीं ये ट्रस्ट वर्दी है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके नेगेटिव एस्पेक्ट को बता रहा है। इट ब्रिंग अ नेगेटिव एस्पेक्ट इन इंटरेक्शन। तो आप हर किसी को शक की नज़र से ही देख रहे हैं, और दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ओके, द म्यूचुअल इंटरेक्शन become gratifying when negative things are substituted by positive things. आपको नेगेटिव थिंग कम करनी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को इंक्रीज करना है। ओके, देन ओनली म्यूचुअल इंटरेक्शन बिकम वेरी इफेक्टिव। देन एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग अदर व्यू पॉइंट फ्रॉम हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इट इज़ वेरी नेसेसरी। आप बीइंग अ बॉस, आपको सबॉर्डिनेट के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, उसके व्यू पॉइंट से कि वो इस डिसीजन को किस तरीके से लेगा, ठीक है। और बीइंग अ सबॉर्डिनेट आपको भी समझना चाहिए कि बॉस की पोजीशन ऐसी है तो वो इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं, क्यों उस तरह का ऑर्डर्स पास हुए। तो यू हैव बी एम्पैथी एटीट्यूड, यू हैव टू पुट वंस लैग इन अदर शूज, then you are able to understand why so and so person takes such type of decision. Then courtesy, it means an act of civility and respect which is shown toward the other, ठीक है। when two individuals interacting mutually adopt courtesy to each other, environment become positive। environment कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इफ़ यू आर टॉकिंग विद अदर पर्सन विद वेरी courtesy, बहुत ही अच्छे रिस्पेक्टफुल मैनर्स में आप बात कर रहे हैं, एंड इट लीड टू अ फ्री एक्सप्रेशन ऑफ वन आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स आइडिया इन अ राइट प्रोस्पेक्टिव। ओके, तो देयर शुड बी अ courtesy when you are having a interpersonal communication. Then avoidance of ego problem. Ego means putting emphasis on oneself, and you should avoid that. Okay, emphasizing on one ego is dysfunctional and in any kind of human interaction. अगर ईगो आएगी तो आप देखते हैं कि इंटरेक्शंस आपका फंक्शनल नहीं हो सकता, इट नेवर गोज टू अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ईगो मीन्स पुटिंग एम्फेसिस ऑन वन सेल्फ, एन ईगोइस्ट थिंकर and speak too much of himself or of things as they affect him. अपने बारे में जो थिंग उसको इफेक्ट करे उसके बारे में ही वो बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड पर्सन रिमेन एरोगेंट अबाउट हिज ओपिनियन एंड हिज नॉलेज, ही इज़ वेरी एरोगेंट, एंड समटाइम्स दे बिकम ऑटोक्रेटिक ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस ईगोइस्ट प्रॉब्लम, कि मैं जो कह रहा हूँ वही ऑलवेज सही है, वैसे ही करना चाहिए, ऐसा एटीट्यूड आने लगता है। एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर द ग्रुप। And this egoism has been called as ego fed mental fever, and it creates a tension during your interpersonal interaction. Therefore, it is desirable to overcome this problem by developing positive thinking based on your reality. So I think you understand why interpersonal behavior is very important, कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। आपने इंडिविजुअल को स्टडी कर लिया, अब आपको देखना है कि इंडिविजुअल जो है आपका एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, ग्रुप में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, बिकॉज इन ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू वर्क इन द ग्रुप ओनली। एंड फॉर दिस वी हैव ट्रांजैक्शन एनालिसिस, Johari window, stroking, live positioning that are used to explain the phenomena of your interpersonal behavior and also used to analyze and improve interpersonal behavior. Clear, students? Tomorrow we will discuss one by one all these methods, transaction analysis, Johari window and all. So you are able to understand कि कैसे हम अपने इंटरपर्सनल बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड वेयर वी आर स्टैंडिंग।
Clear? Thank you for the day, students.